This meeting is being recorded. Straight your spine, keep close your eyes. Madam Namaskar Mudra. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Yogena Chityasya Padena Vacham Malam Sarirasya Chavedakina Jopakarotam Proboram Muninam Patanjalina Pranajalirana Tasmi Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm. When it's little palm, gently touch your ball and knees. अच्छा कल इसी चीज का क्या यस कुछ बोल रहे थे? अच्छा ठीक। तो कल हम लोग शायद ज्ञान योग तक पढ़ाई कंप्लीट किए थे। तो कल सर स्वामी विवेकानंद जी तक हाँ स्वामी विवेकानंद नहीं स्वामी अच्छा हाँ यस यस प्रिंसिपल। तो आज ज्ञान भक्ति योग आज करेंगे। अच्छा आज कुछ पढ़ाई हम करके आने के लिए बोले थे सर संख्या योग का आप मेरे को बोले थे कि अरुंधति थोड़ा सा कुछ करके आना, तो मैं थोड़ा सा कुछ की हूँ। अच्छा बोलो। यो मैंने सर क्या मैं गूगल में सर्च की, थोड़ा बहुत वीडियोस देखी, सुनी, समझी, उसके बाद अपना थोड़ा सा नोट्स की। अच्छा सर संख्या फिलोसॉफी का था ना सर? वही इट इज द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसॉफी, फाउंडर इज महर्षि कपिला. It is one of the six darshanas. Six darshanas means the Nyaya, कैसे वो? वैशेषिका, योगा, मीमांसा. So it is one of them. So Sankhya philosophy, Sankhya means in Sanskrit it is numbers or the right knowledge, the perfect knowledge. So it is based upon two ultimate realities. It means the dualistic philosophy. It based upon the Prakriti and the Purusha. Prakriti is it is also called as the realistic school of philosophy because it considers the Prakriti and Purusha both are equal. सर अगर गलत हो तो आप प्लीज बोल दीजिएगा, मेरा ये अपना है। पहले तुम कंप्लीट करो, देन आई विल से ना। ओके सर ठीक है। Prakriti means nature. Prakriti is the material cause of the world. It is eternal, unconscious, and active. It is also called as the creator. It is affected and influenced by the Purusha. When it comes in contact with the Purusha, it got affected. Otherwise, and it is also, it is not produced, but it produces. Prakriti, it produces. And Prakriti is the equilibrium combination of three gunas, Sattva, Rajas, and Tamas. So it is known as Trigunatmak.
But when it comes in contact with the Purusha, ये equilibrium imbalance हो जाता है, जिसके वजह से the individual has its own personality, उसका अपना personality बन जाता है. Am I right, sir? अच्छा, anything else? Pata? Yes, sir. And about Purusha, Purusha is the spirit or the self, the eternal, conscious and pure. And Purusha, it when it comes in contact with Prakriti, तभी उसमें I mean पुरुषा मैंने when combined पुरुष and प्रकृति जब combine हो जाते हैं तब individuality एक produce होता है, individual produce होता है. So it is not a cause of this world. It is neither produced nor does it produces. It means it is free from the cause and effect. It is a supreme spirit. And Purusha is the आप जो बोले थे कर्ता भोक्ता and ज्ञाता. It is a seer and the knower. Okay. It cannot be a subject of knowledge. So उसके बाद सर है वही the world is created in the union of Purusha and Prakriti. From union of Purusha and Prakriti, 25 तत्व का इवोल्यूशन होता है, 23 इवोल्यूशन होता है प्लस पुरुष एंड प्रकृति इज टोटल 25 तत्व मिलके ही सृष्टि का रचना हुआ है. मतलब सो प्रकृति फर्दर इट प्रोड्यूसेस महत, that is the buddhi, the higher mind or the intellect, and ahankara, that is ego, the self identity. Here ego is the self identity, means खुद को पहचानना. जब प्रकृति और पुरुष कांटेक्ट में आते हैं तब वो खुद को पहचानने लगते हैं सर. एंड अहंकार से फिर 3 गुण आते हैं, दैट इज सत्व, राजस एंड तमस. एंड सत्व में लोअर माइंड, दैट इज मानस, ज्ञानेंद्रिय एंड कर्मेंद्रिय होते हैं. 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, दोज आर सेंस ऑर्गन्स. एंड कर्मेंद्रिय, दोज आर हैंड, माउथ, feet, anus and genitals. और तमस में सर 5 तन्मात्रा होते हैं, पंच तन्मात्रा एंड पंच महाभूत. पंच तन्मात्रा में शब्द, स्पर्श, रस, रूप एंड गंधा होता है. एंड महाभूत में ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ. सो अभी तक इतना ही समझा सर मैंने, आगे का आप बता दीजिएगा. ये जस्ट ब्रीफ था मेरे जितना समझ में आया, वीडियोस देख के जितना समझी सर. अच्छा, और क्या समझ में आया? If I am wrong, then please let me. और सर संख्या फिलोसॉफी का मेन एम होता है कि liberation is the final goal of and destination of human. When Purusha achieve this goal with the help of Prakriti, then relationship between Prakriti and Purusha ends. So here I end my note. Okay. Anyone wish to ask any question to her? Me? Anyone, कोई भी. हाँ, कोई भी अरुंधति से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर कुछ पॉइंट्स छूट तो गया होगा सर, गलत भी होगा तो आप बता दीजिएगा प्लीज. नहीं, whatever you have written, that is वो written format में है, वो जो कहीं से भी. बट ये है कि अगर नॉर्मल कोर्स में अगर किसी को समझाना है, how will let them know? लिटरल मीनिंग मतलब? हाँ, मतलब जैसे सांख्य अगर कोई पूछते हैं तो कैसे उनको समझाएंगे कि सांख्य क्या है? सर ऐसे समझ में तो आ रहा है, लेकिन उसका समझाने का तो इसलिए मैं नहीं समझा पा रही, इसलिए तो आपको बोल रही हूँ. 3 क्लास आप मेरे को पूछ चुके हैं, तीनों क्लास में मैं इसी में अटक रही हूँ सर. मेरे को लिटरली कैसे समझाना है वो नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एकदम फर्स्ट है. पुरुषा प्रकृति, दिस टर्म्स आर टोटली न्यू टू मी, तो मेरे को वो चीज को थोड़ा समझने में भी टाइम लग रहा है सर. एकदम नहीं, वो तो लगेगा. ये तो एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्ट किए और नेक्स्ट डे हम किसी को समझाना एकदम स्टार्ट कर देंगे. आत्मा और ये स्पिरिचुअल ये सब चीज नहीं आता है, तो इसलिए आगे का सब आ जाएगा, इसमें अटक रही हूँ सर. नहीं, वो तो है ही, सभी का थोड़ा टाइम लगेगा, सभी को ही टाइम लगेगा. नो प्रॉब्लम. अच्छा, सांख्य मतलब जो हम लोग कल भी चर्चा किए हैं वही है जो आज भी अरुंधति ने भी वही बोला कि इट्स ऑल अबाउट नंबर, और राइट नॉलेज भी इनको हम लोग बोल सकते हैं. राइट नॉलेज इन द सेंस कोई भी चीज को सही रूप से जानना, दैट इज द राइट नॉलेज.
और जैसे भगवत गीता में इसी रूप से सांख्य योग, वो चैप्टर ही भगवान श्री कृष्ण ने उल्लेख किया। तो ये सांख्य योग वही है कि जो संख्या या नंबर्स के द्वारा सभी कुछ को हम लोग जानते हैं, दैट इज सांख्य योग। और क्या है, दैट इज प्रकृति एंड पुरुष, इन दोनों का मिला मतलब दोनों मिल जाना वही अल्टीमेट है। प्रकृति एंड पुरुष, इन दोनों का मिलना ही अल्टीमेट है। और प्रकृति और पुरुष कैसे मिलते हैं? इट्स ऑल अबाउट तत्व से मिलते हैं। हाँ, तेईस तत्व। दैट इज पुरुष इज कॉन्शसनेस एंड प्रकृति इज दैट इज इन मतलब मेटेरियल थिंग्स। लेकिन इन दोनों, जब प्रकृति अकेला खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक उनके साथ पुरुष नहीं क्रिया करते हैं। पुरुष उनसे जब तक अटैच नहीं होता है तब तक वो क्रियाशील नहीं होते हैं। जब भी वो पुरुष प्रकृति के साथ संबंध में आते हैं तब भी वो क्रियाशील होते हैं। इसीलिए पुरुष और प्रकृति, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। और इन दोनों अलग अगर हो जाते हैं तो सृष्टि तत्व नहीं रहेगा। जैसे प्रकृति बोला जाता है दैट इज, जैसे ऐसे नॉर्मली देखना सभी लोग बोलते हैं प्रकृति इज फीमेल्स आर प्रकृति एंड मेल आर पुरुष। ठीक है, ये क्यों बोला जाता है? इसका भी सिग्निफिकेंस है ऋतु, ऐसा नहीं। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुरुष कुछ Creates. सृष्टि नहीं कर सकते। सृष्टि अगर कुछ करना है तो वो प्रकृति कर सकते हैं। मतलब एक माँ ही, मतलब एक वोमन, दे कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बट वो Producing the चिल्ड्रन creator. चिल्ड्रन हाँ, चिल्ड्रन वो खुद कहाँ से मिलेगा? पुरुष से। मतलब एक मेल, उनके पास ही बीज है। तो अगर वो फिर बीज जब तक नहीं प्रकृति में स्थापन होता है तब तक वो धारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो करता है वो कौन है? पुरुष है। वो मतलब ये कॉमन कॉलिक्वल सेंस में बोला जाता है, एक निकृष्ट उदाहरण बोल सकते हैं इसको। उत्कृष्ट उदाहरण नहीं, निकृष्ट मतलब सभी लोग इसको समझ पाएंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो ये हो गया प्रकृति। फिर प्रकृति उनको ऐसा प्रोड्यूस ये जो उनको नरिश। हाँ हाँ, बोलो। नहीं सर, मैं वही मतलब आई अग्री टू योर पॉइंट कि हाँ, फीमेल्स को हम प्रकृति बोलते हैं और मेल्स को पुरुष बोलते हैं, बट वो समझाने के तरीके हाँ, से। समझाने के लिए, मतलब ये हाँ निकृष्ट रूप से, ये उत्कृष्ट हाँ। नहीं है। यस। मतलब एक एकदम साधारण रूप से कोई अ, हम्म। अनजान व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए ये उदाहरण देंगे तो वो इजीली समझ हाँ पाएंगे। जी हाँ जी हाँ लेकिन जी। अल्टीमेटली क्या है? प्रकृति एंड पुरुष, दैट वी ऑल आर प्रकृति। पुरुष उसमें क्रिया करते हैं, इसीलिए वी आर लिविंग बीइंग। और जब ये पुरुष इस शरीर से अलग हो जाएंगे तब ये शरीर यहाँ पे ही रह जाएगा, तब ये और कोई काम का नहीं रहेगा। दिस इज द मेन थिंग्स ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। एवरी इंडिविजुअल हैव एलिमेंट ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, तो हाँ, उसी का ही बैलेंस है। एकदम, मतलब सभी के अंदर में प्रकृति एंड पुरुष है। जैसे ये जो अद्वैत वेदांत में सांख्य का फिलोसॉफी वो कैसे आया है, शायद एक स्टोरी हमने बताया था। दैट इज चैतन्य महाप्रभु का एक पार्षद, हिज नेम इज अद्वैत प्रभु। ही वॉज इन वृंदावन, और उसी टाइम पे मीराबाई भी वहां पे थी। ठीक है, तो दोनों ही कृष्ण का साधक थे। तो मीराबाई उनसे मिलने के लिए गए। तो ये तो सन्यासी है, तो वो बोले, जो मतलब जो दार रक्षक थे वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वो बहुत कुछ राइट अप उनका था, ये था। तो तब उनको बोले कि मैं कोई लड़कियों का मूल दर्शन नहीं करता। ठीक है, मतलब हम लड़कियों से नहीं मिलते हैं। तो जाके वो उनको बोले मीराबाई को। तो तब मीराबाई का जो आंसर था वो शरणीय आंसर। उन्होंने बोला कि हम तो जानते थे वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, और बाकी तो कोई पुरुष है ही नहीं। जब ये आंसर उनको जाके सुनाया, वो रोते हुए उनका पीछे चल बसे, उनका पैर पकड़ के रोने लगे
कि आपने क्या बोल दिया, मेरा आंख ही खुल गया। सो दैट्स द थिंग, मतलब वहां पे प्रकृति, वी ऑल आर प्रकृति। जैसे यहाँ पे जैसे देखना, कृष्ण और राधा का जब बात होते हैं सब लोग बोलते हैं राधे राधे। और राधा क्यों है? वो जीव आत्मा है, मतलब वो दैट इज प्रकृति। और वो हमारा ही सत्ता है। वो परमेश्वर और जो भगवान है वो उनको जो चाहते हैं, अल्टीमेटली जो चाहते हैं, ऐसे एक भक्त है। तो हम भी वही भक्त है, इसीलिए सी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द भक्तस। इसीलिए राधे राधे, मतलब श्री राधा अगर आ, आनंदित होंगे तो कृष्ण को ऑटोमेटिक मिलेंगे। तो जो भी है तो यही और जैसे वो मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है ना, कि राधा और कृष्ण के अंदर में प्रेम था, ये था वो था। ये जो प्रेम उनके अंदर में जो बोला जाता है, दैट इज अलौकिक प्रेम। इसको लौकिक रूप से नहीं देखा जा सकता है, उनको समझा भी नहीं जा सकता है। इसलिए दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। लेकिन जो हम लोग इस नॉर्मल चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा एंड त्वक, इनके द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं, वो कंप्लीटली सरासर गलत हो जाता है। वो सरासर गलत हो, कभी सही होते ही नहीं। इसीलिए तो ज्ञान के द्वारा सांख्य को देखें, और सांख्य का जो ज्ञान है वही योग का थ्योरिटिकल पार्ट है। जो बोलते हैं ना हम लोग योग जानते हैं, तो सांख्य फिलोसॉफी अगर नहीं जानते हैं तो योग उसका, वो योग का एबीसीडी कुछ नहीं जानता। दे नोज योगा इज इक्वल टू जीरो। में भी वो हो सकता है कुछ आसन जानते होंगे, कुछ प्राणायाम जानते होंगे, बट दे डोंट नो योगा। ठीक है अयंती, Yes, sir. एनीवन एनी क्वेश्चन? और नेक्स्ट वीक के लिए अनम, वी हैव गिवन यू ऑल होम टास्क। यू हैव टू प्रिपेयर ए पीपीटी ऑन एनी, क्या बोलते हैं वो, डिजीज। Disease. disease. कल देखना एक हम वो भेजे हैं, जस्ट इसकी Hypertension. तरह हाइपरटेंशन, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन यूनिट टू, जस्ट नॉट ओनली, नॉट ऑन हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन में भी अगर कोई करते हैं तो दैट्स नीड टू बी चेंज, दैट योर एक्सपर्टीज शुड बी देयर। and next week will not join the class because we are going for that Mayapur trip. शायद कभी कभी हम लोग वहां से लाइव करेंगे, बट नॉट ऑल द सेशंस, क्योंकि इंटरनेट का क्या है आई डोंट नो। Sir. हम्म। जो सर वो डिजीज का जो पीपीटी करने दिए हैं, सो हमको स्लाइड्स बनाने हैं तो अपने वर्ड्स में लिखना होगा, या फिर टाइप वर्ड में करके करेंगे, या फिर हमको खाली स्लाइड्स जो हम डाउनलोड करेंगे? एज यू विश, किसी को समझाने के लिए व्हेन यू आर अ टीचर, तब जाके आप किसी भी रूप से आप पढ़ा सकते हो, वो अपने ऊपर है। जैसे सर आपने भेजा इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, सो वी हम्म। कैन डू दैट आल्सो एंड देन प्रेजेंट इट It on will the be show. better if you make PPT, PowerPoint presentation. Okay. Okay. क्योंकि वो पीपीटी से प्रेजेंटेशन वो बहुत अच्छे होते हैं, एंड फॉर रीडिंग देन दिस पीडीएफ फॉर्मेट इज ओके। यू ऑल हैव टू बी सुपर क्वालिफाइड योगा टीचर। ठीक है, तो उसमें सारा कुछ आना चाहिए। ठीक है, परंतु तो अभी बैठ के थोड़ा सीखना भी होगा बच्चों से। जी सर। पीपीटी कुड एबल टू प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? नहीं, नेवर डन। वो कुछ नहीं, वो गूगल में सर्च कर लेना हाउ टू। नो सर, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। आई वाज माय हस्बैंड विल टीच मी। वही तो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से सीखना होगा, हाँ बस सर। सीख लेने से हो जाएगा। जी जी, वो हो जाएगा। सिर्फ अरे मेरे को कंटेंट का था सर, कंटेंट अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, प्लस हम हाँ, लोग अपना कंटेंट कंटेंट तो वर्ड्स में लिखना है, फिर वो जाके वहां पे पुट करना है। वही है। वहां पे पिक्चर देके, साउंड देके, म्यूजिक देके, जो भी है अपने हिसाब से करना है।
Okay, so we'll move to Sir, one question. yes. Uh, I don't get the meaning of Kaivalla Siddha. So why Purush is called Kaivalla Siddha? अच्छा, I read that thing, so there I get that what Kaivalla Siddha. कैवल्य क्या? कैवल्य स्टेज, Siddha. कैवल्य सिद्ध, कैवल्य जिसको प्राप्त हो गया है वही है कैवल्य सिद्ध। कैवल्य मतलब मोक्ष, केवलता, जहां पे सुख दुख और बोल सकते हैं नहीं है, जहाँ पे पाना और खोना, जहाँ पे सब समान हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैवल्य अवस्था। लिबरेशन को कैवल्य बोलते हैं। हाँ, लिबरेशन को कैवल्य बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लिबरेशन। लिबरेशन मतलब ऐसे ही, कैवल्य इज स्पिरिचुअल लिबरेशन, कैवल्य मोक्ष सब एक ही शब्द को डिनोट करते हैं। केवलता मतलब वो सिर्फ अपने आप में रह जाना, दैट इज केवलता। प्राप्ति मतलब उसको प्राप्त कर लेना। जैसे क्या बुद्धिज्म में बोला जाता है निर्वाण, शब्द देखना सुनाई देता है निर्वाण, तो वो निर्वाण मीन्स दैट इज वो भी मोक्ष को ही बोलते हैं। निवान मोक्ष, The most realized state. यस, मतलब मोस्ट, realized. यस, तो यही वो भी सेम ही। ओके त्रिशा, यस गार्गी। सर पेज नंबर 10 में नंबर 5 जो लाइन है, अकॉर्डिंग टू द संख्या द कॉन्शसनेस इज नॉट ए वर्च्यू ऑफ द सोल, इस लाइन का मीनिंग क्या है? कॉन्शसनेस जो है वो आत्मा या जो पुरुष है उनका वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वो जब शरीर से मतलब पुरुष जब शरीर से आते हैं तब आके कॉन्शसनेस आते हैं, उनका पहले कुछ कॉन्शसनेस नहीं है। जैसे टीवी में हम लोग मूवी देखते हैं ना, जैसे देखना कभी कभी दिखाते हैं भूत जो होते हैं वो सभी के इधर से उधर जा रहे हैं लेकिन किसी को वो टच नहीं कर पा रहे हैं। और कोई कोई भूत होते हैं वो किसी को मारते हैं पीटते हैं, ठीक है। ये जो मारने वाला भूत है मतलब वो तो दिखता नहीं। नहीं नहीं, जो मतलब दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कोई किसी को पीट रहे हैं, सो दैट इज वो तो अपना कल्पना शक्ति में है। लेकिन जो अल्टीमेटली है, जो वो रहते हैं, उनका स्पिरिट रहते हैं, बट दे कुड नॉट एबल टू टच, क्योंकि उनके अंदर में शरीर नहीं है, उनके अंदर में पंच महाभूत वो नहीं है, और पंच महाभूत को ही हम लोग महसूस कर सकते हैं। पंच महाभूत अगर नहीं है तो ऐसा कुछ है जो जैसे अनुभूति, क्या वो हम लोग महसूस कर सकते हैं? वैसे रिसेप्टर हम लोगों के पास ऑटोमेटिकली तैयार नहीं। में भी कोई कोई कर सकते हैं, किसी को देख के कोई समझ सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट। वो कुछ ही लोग कर सकते हैं, कुछ ही लोग कर पाएंगे। ओके, इज इट ओके? सर लेवल 2 का पूरा सिलेबस क्या सांख्य फिलोसॉफी पे बेस्ड है या वो एक नहीं पार्ट नहीं, है? वो कुछ नहीं है। अभी आज के बाद और सांख्य के बारे में बोलेंगे ही नहीं, इसको छोड़ के और भी बहुत कुछ है। मैं बोली हो गया सर, अगर सांख्य फिलोसॉफी में पूरा एंटायर सिलेबस है तो खत्म। ऐसा देखो, ऐसे किसी को भी कोई भी एक टॉपिक पे ऐसे नहीं पकड़ना है कि यही अल्टीमेट है। योग एक महासमुंदर है, जब पीएचडी भी करने के लिए जाएंगे ये सारा चीज आएगा। ये पीएचडी मतलब क्या है, इसके ऊपर जब अगर कुछ बुक्स भी लिखने के लिए जाएंगे ना, तब यू शुड हैव टू हैव नॉलेज अबाउट सांख्य, यू शुड हैव टू हैव नॉलेज अबाउट मतलब अष्टांग योगा, यमा नियमा, देन मुदिता, उपेक्षा, देन वो अंतराया, ये सारा कुछ रहना चाहिए नॉलेज। तो तब जाके जो भी बुक्स लिखेंगे वो परफेक्ट होगा, नहीं तो इम्परफेक्ट होगा। वो तब जाके वो रह जाएगा योग का बुक्स मतलब तारासन इसका नाम क्यों है,
इनका बेनिफिट क्या है, इनका लिमिटेशन क्या है, कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते, बस हो गया। योग का बुक, लोग तो यही सोचते हैं योग का बुक मतलब। तो ये फिलॉसफी तो आज भी बहुत प्रेवलेंट है। जैसे आजकल हम टेक्नोलॉजी में ज्यादा जा रहे हैं, लाइक थिंग्स लाइक रोबोट्स एंड स्टफ लाइक दैट, उसमें पुरुष का चांस ही नहीं है। उसमें जहां तक आत्मा है, यू कैन डू इट डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोबोट। इट विल हैव अ सर्टेन सोल, बट इट विल नेवर हैव दैट कॉन्शियसनेस। एकदम, रोबोट का तो कॉन्शियस नहीं, वो तो प्री प्रोग्राम्ड है, तो दैट आज इज तक उसका फिलॉसफी इज स्टिल इन प्रैक्टिकल यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एकदम। Even if you go for Vaiseshik philosophy, there is also written that that is padartha and abhava. Padartha means 6 substances are there, और उस पदार्थ के अंदर में 9 substances are there. जैसे पंच महाभूत, क्षिति ऑफ तेज मरुद बोम, दीक काल, देन और क्या है, गति, मतलब जो मूवमेंट होता है वो, और समन्वय, ये 9, ये 9 सब्सटेंसेस आर देयर, जिसके आधार पे सारा कुछ फिजिक्स निर्भर है। आज भी जर्मनी में कोई फिजिक्स का एंट्रेंस देने के लिए जाते हैं, दे शुड हैव टू हैव नॉलेज अबाउट वैशेषिक फिलोसॉफी, ठीक है, अदरवाइज उनके ऊपर वो क्वेश्चन रहता है उनका, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, नहीं तो पास नहीं कर सकते, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पार्ट है दैट इज विद अस, जो थ्योरेटिकल पार्ट है दैट इज विद अस, जो प्रैक्टिकल है वो तो उनके अंदर, मतलब वो तो और भी रिबिल्ड होगा, और भी रिसर्च करना है, उनके ऊपर स्टडी करना है, देन वी कुड एबल टू फाइंड ऑल दिस थिंग्स। यस गर्गी, क्या क्वेश्चन था? हो गया तो कंप्लीट, जो लाइन मैंने बोली। अच्छा, नाउ विल मूव टू भक्ति योगा। अच्छा, व्हाट इज भक्ति? Bhakti is unconditional and intense love for God is called bhakti. भगवान के प्रति नियत एवं निस्वार्थ रूप से उनको चाहना, वही भक्ति है। कोई भगवान को इस रूप से चाहते हैं, ओके, आई एम आस्किंग दिस एंड यू जस्ट गिव मी दिस, देन आई विल ऑफर ए पूजा विथ or I will worship you with 100 rupees थाली, ठीक है, या 200 रुपीज का, तो वो दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति वो है जो भगवान के प्रति ऑलवेज, निरंतर रूप से आपके मन में है, दैट इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, और वो नियत रूप से उसमें लगा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कट ऑफ हो जाने से वो, दैट इज नॉट अ भक्ति। निरंतर रूप से अगर उनसे जुड़े हुए हैं तो वही भक्ति है। भक्ति योगा is the yoga of devotion. It emphasizes the opening of the heart to divine love, the union of lover, the yogi, and the beloved, the divine. यहाँ पे भी वो जीवात्मा के साथ परमात्मा या का मिलन ही योग है, ये यहाँ इस रूप से हम लोग बोल सकते हैं। मतलब भक्त और भगवान, इन दोनों का मिलन ही योग है। The devotion, often translated into singing a holy song or chant with ecstatic repetition of names
of the beloved in the gathering called kirtanas. Bhakti yoga does not tell you where to direct the devotion or the specific method by which you should do it. That is left to the devotee's personal preference. That is, कोई भी भक्त वो कैसे भगवान को भक्ति वो दिखाएंगे, चाहे वो गाना गाते हैं, चाहे वो पूजा करते हैं, एंड चाहे वो क्या होता है मतलब भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ा के, चाहे वो मन से, ठीक है, तो कोई भी रूप से वो भक्ति अपना प्रकट कर सकते हैं, और जो भी जैसे भी भक्ति को प्रकट करेंगे वो ही भक्ति है, उससे कुछ अलग कुछ है नहीं। अलग से उनको हम लोग कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, अलग से हम लोग उनको कुछ नाम नहीं दे सकते। ओके, तो यही है भक्ति। नारद भक्ति सूत्र is a premier treatise on the treasure of bhakti that emphasize the connection between bhakti and prema, and treats the age-old enigma about the nature of love in original form. भक्ति एंड प्रेम, ये दोनों एक साथ कैसे मिलाया जा सकता है? भक्ति जो भगवान के प्रति है और प्रेम शब्द का उल्लेख, जैसे हिंदी में ऐसे प्रेम, देन और क्या है, प्यार, ये शब्द है ना, तो ये प्रेम का तात्पर्य क्यों बोला गया है? जैसे इवन श्री कृष्ण और राधिका, इनका जो प्रेम जो बोला गया है, ये प्रेम देखना, ये बोला गया एक मानव मानवी का प्रेम, और जो एक भक्त जो है, मतलब जो राधिका है, वो है किसी का कुल वधू है, और वो श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, ठीक है, और वो उनको छुप छुप के मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समय बिताते हैं। सो ये जो सिनेरियो, इनको प्रेम बोलते हैं। प्रेम इज ऑलवेज ये निषिद्ध होता है, मतलब समाज के लिए वो सिद्ध नहीं है, और निषिद्ध जितना भी होगा उतना ही उनके प्रति आकर्षण रहेगा, और जो सिद्ध होता है उनके प्रति आकर्षण टूट जाता है। जैसे भी तो वो सेलुलॉइड युग नहीं है, पहले जो भी मूवीज जो सिनेमा हॉल में होता था, कोई भी मूवीज में अगर वो ए साइन देखते हुए उसमें पोस्टर लगता था, उसमें ज्यादा भीड़ होता था। आज का तो वो कुछ क्या होता है, मायने ही नहीं रखते हैं, लेकिन एक टाइम पे था। क्यों था? बिकॉज वो निषिद्ध था, वो 18 ईयर्स का नीचे का कोई व्यक्ति वो देख नहीं सकते हैं। लेकिन इस उसी में देखेंगे, यू कुड फाइंड दैट जो भी 18 ईयर्स का कम उम्र वाले हैं उनका लाइन ज्यादा है। क्यों है? वो निषिद्ध है, इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए। आज के दिन पे भी निषिद्ध है, जैसे देखना और जैसे ड्रिंकिंग इज ऑल्सो, मतलब जैसे अल्कोहल इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड इन इंडिया, ओवरऑल समाज में। देखना सभी उनको प्राप्त करने के लिए सभी लोग मतलब कोई भी काम से दे विल गेट इट, वो सभी लोग मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको जो एक डिमांड क्रिएट करके रखा गया है, और जिस कारण उनके प्रति लोगों का आकर्षण और भी ज्यादा है। लॉकडाउन पीरियड में हम लोग देख सकते हैं, जितना भी वो
लिक्विड काउंटर था और उसके सामने कितना बड़ा बड़ा लाइन हो रहा था। क्यों? जो लोग सामने उभर के नहीं आते थे उस टाइम पे उभर के आके लंबा 2 किलोमीटर का भी लाइन दिए हैं, ठीक है, और टीवी में वो न्यूज में भी आ रहा था। तो क्यों? बिकॉज वो निषिद्ध है, लेकिन उसको पाने के लिए वैसे ही प्रेम है जो शायद we are not supposed to get that things, but we are willing to get those things. That is, we can say, that is in प्रेम। प्रेम में वही होते हैं। तो यहाँ पे भक्ति और प्रेम इन दोनों को अटैच करके दिखाया गया है नारद भक्ति सूत्र में। भक्ति softens the heart and removes jealousy, hatred, lust, anger, egoism, pride, and arrogance. It infuses joy, divine ecstasy, bliss, peace, and knowledge. जो भक्ति में रहेंगे वो सभी को समा जाचना करते हुए समा ही कर देंगे। किसी को भी ऐसा नहीं कि उनको अनजस्टिफाई करेंगे, अच्छा आप सही हो आप गलत हो, या कुछ नहीं बोलेंगे। उनके सामने सभी व्यक्ति समान है। लेकिन ये बहुत टफ होता है, ये सुनो, टफ होता है कि नहीं? हम लोग देख सकते हैं, नहीं टफ तो है। आप सोचो कि कोई आपका सबसे बड़ा शत्रु है, आप उनको मित्र के रूप में कैसे अपना सकते हैं? क्यों बोलती हूँ सर कि मुश्किल नहीं है, इज बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर विल। आप वो डिवोशन एंड लव जितना आप आउटवर्डली करते हो, इट्स नॉट लाइक इफ यू एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट इफ इट्स अनकंडीशनल देन इट्स इजी बिकॉज यू कैरी ऑन, जैसे आया वापस आया, एकदम। हम एक तरफ से चलता रहा। लेकिन भक्ति बोला जाता है इज इजी टू इंडल्ज बट इट्स वेरी टफ टू कंटिन्यू। जैसे कोई आज व्यक्ति आज जैसे भक्ति में आ गए, वो टीका लगाना स्टार्ट कर दिए, वो पूजन अर्चन वो करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन वो तो शुरुआत है, ओके, रिचुअल्स है। मन का स्थिति जो बदलना चाहिए। देखना एक टाइम पे मूवीज में भी दिखाया जाता था, जो भगवा पहने हुए हैं वो सबसे ज्यादा कुटिल व्यक्ति होते थे। ये नेगेटिव शायद कहीं ना कहीं पे शायद था, इसलिए वो दिखाया गया। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा ये गलत है, वो हिंदुइज्म और मुस्लिम और इंडियन जो कल्चर है उनको डिप्राइव किया जा रहा है, नॉट लाइक दैट। कहीं ना एक व्यक्ति को भी दिखाया जा रहा है, मतलब वो सिर्फ वो पहन के फिर उस रूप से अगर वो काम नहीं करेंगे तो उसका कोई मायने नहीं रखते हैं। हम लोग देख सकते हैं महाभारत की कहानी में, जिसमें जब श्री कृष्ण डिक्लेयर किया कि मेरा सेना और मैं अलग हूं और मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब मैं युद्ध में डायरेक्टली मैं भाग नहीं लेने वाला हूं। कोई अगर मुझे चाहते हैं तो आई विल बी विद देम बट विदाउट माई नारायण सेना। नारायणी सेना। और उस टाइम पे 1 करोड़ का नारायणी सेना था, मतलब उनका जो स्ट्रेंथ, काउंटलेस, हाँ बोलते काउंटलेस। तो मतलब वो बोला जाता है 1 करोड़, ऐसे ही 10 सहस्त्र, तो वो 1 करोड़ का उनका नारायणी सेना था। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो ताकतवर राजा वो उस टाइम पे वही थे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम खुद युद्ध नहीं करेंगे और मेरा जो सेना है वो युद्ध करेंगे। और वो बोले कि जो दोनों पक्ष में मतलब देखो फिर उनका स्ट्रेटेजी देखो, अगर वो खुद अलग हो गए उनकी सेना से और उनको मांग लिए अर्जुन और मतलब युधिष्ठिर जो भी है, तो युधिष्ठिर जब इनको मांग लिए और उधर तो क्या बोलते हैं दुर्योधन, वो तो बहुत खुश हो गए। और दुर्योधन चाहते थे कि उनका सेना उनके साथ आए, क्योंकि वो युद्ध करने वाले नहीं है, और कोई एक व्यक्ति का युद्ध नहीं करेंगे उनका क्या कीमत है, कुछ नहीं। दिस इज द ट्रू अंडरस्टैंडिंग। उनकी प्रति भक्ति था पंच पांडव का, इसीलिए वो उनको मांगे। और इनका भक्ति नहीं था। कुछ दिन पहले जब ये भाग बटोरा हुआ उसका कुछ दिन पहले श्री कृष्ण शांति का दूत बन के
मतलब धृतराष्ट्र के सामने उपस्थित थे। यही दुर्योधन उनको बांधने के प्रयत्न किए थे कि मतलब शांति का दूत को अगर अरेस्ट कर लेते हैं, अगर उसको बांध लेते हैं, उसको कारागार में डाल देते हैं, तो युद्ध ही खत्म। जो ऑपोजिट पक्ष का जो होते हैं वो उसको हार मान लेना पड़ता है। फिर उनको उस टाइम पे देखा जाता है कि श्री कृष्ण वहां पे उनका विराट रूप दिखाया, मतलब उनको रस्सी लेके आके भी उनको बांध नहीं पाए, उनको पकड़ ही नहीं पाए, जो भी है वो तो साहित्य का बात है। तो ये इसीलिए भक्ति में इंडल्ज होना बहुत इजी है, लेकिन उसमें सस्टेन करना वो बहुत मुश्किल है। हम लोग देख सकते हैं रामायण का कहानी, उसमें कौन है ना, श्री राम और उनका हनुमान। हनुमान का पावर इतना ज्यादा था, अगर देखा जाता है डायरेक्टली तो राम से भी ज्यादा, चाहे वो शरीर का ताकत में हो या डिवाइन पावर में। वो उड़ सकता था, वो छोटे हो सकते थे, वो बड़े हो सकते थे, लेकिन उनका मन में यही था कि मेरा प्रभु है राम। लेकिन खुद राम वो ना बड़ा हो सकता था, ना छोटा हो सकता था, ना वो उड़ सकते थे, ठीक है, बट फिर भी वो राम को ही अपना प्रभु मान के पूरा जीवन, और भी बोला जाता है कि वो अभी भी जिंदा है हनुमान। कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर भी जिंदा है, दैट इज वन ऑफ देम इज हनुमान। उनका मृत्यु नहीं हुआ है। और वो हनुमान कैरेक्टर सिर्फ वो इंडिया में ही नहीं, जैसे देखना वो चाइनीज जो बुद्धिज्म है उसमें भी मंकी का एक बहुत बड़ा मंकी गॉड उसमें, तो उनका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। रोचक भरी कहानी। Okay. All worries and anxieties, fears, mental torments, and turbulence vanishes entirely. The devotee gains freedom from the cycle of birth and death. He attains the immortal abode of everlasting peace, bliss, and knowledge. In this Kali Yoga, bhakti is seen as the surest, safest, and easiest form of yoga to practice. Bhakti does not try to get rid of emotions, but seeks to channelize and harness the emotions by sublimating them into devotion. The aspirant trending the path of bhakti attempts to realize the truth by devotion and love of God in a personalized form, that is Ishtadevata. Prayer, chanting, japa, repetition and mantra or name of God, hearing or telling the stories of God and saints, pujas, ceremonies and rituals are the basic techniques of bhakti. A mystical relationship with God, who may see him as a friend, a child, a mother or a teacher, is sought and developed in Bhakti Yoga. It helps the aspirant get rid of emotions and egocentricity by developing humanity, self-surrender, and the feeling of being an instrument in the hand of God. वो अपने में कुछ नहीं रखेंगे, सब कुछ वो भगवान को ऊपर समर्पित कर देंगे और यही समर्पित रूप से वो रहेंगे, एंड वही अल्टीमेट डिवोशन है। वो किसके ऊपर डिवोशन दिखाएंगे ना, इष्ट देवता, दैट इज पर्सनलाइज्ड फॉर्म। किसी भी रूप से आप पूजा कर सकते हो, बट दैट नीड टू बी फुलफिल्ड। And that is ultimate. The following are 9 ways involved in Bhakti Yoga.
दैट इज श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवणम मतलब सुनना, भगवान का नाम सिर्फ सुनते हैं तो उनको बोलते हैं श्रवणम। कीर्तनम भगवान का गुण कीर्तन करना, दैट इज कॉल्ड कीर्तनम। स्मरणम मन ही मन में अगर भगवान को स्मरण करते हैं, दैट इज स्मरणम। पद सेवनम जैसे पैर को पूजना, जैसे भरत ने श्री राम का पादुका लेके आके राज्य शासन किए थे, दैट इज कॉल्ड पद सेवनम। अर्चनम अर्चना करना, जैसे वो आरती के समय पे जैसे अर्चना करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड अर्चनम। बंदनम प्रेजिंग द लॉर्ड, भगवान को, भगवान का वंदना, जैसे बस गणेश वंदना शायद सभी सुना ही होगा। सुना है? किसी ने नहीं सुना है ऐसा है? गणेश वंदना जो वक्रतुंड महाकाय, तो दैट इज वंदना। कृष्ण का जब वंदन होते हैं, दैट इज हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतन राधा कांतन वस्तु, दैट इज ए वंदना। देन वो गणेश का वंदना जब होते हैं, तब वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, वो जैसे जो पूरा एक वंदन, द प्रेजिंग द लॉर्ड। देन दास्यम adopting a role of a servant of a god, जब भगवान का दास के रूप में खुद को आप आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हनुमान, वो खुद बोलते थे ही इज द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, प्रभु राम का वो दास है। सख्यम सखा, फ्रेंडशिप विथ लॉर्ड, भगवान के साथ बंधु तो कर लेना, जैसे सुदामा। सुदामा वो जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन ये भी मानते थे ही इज माय फ्रेंड, सो दैट इज सख्यम सखा। एंड आत्मनिवेदनम व्हेन यू आर सरेंडरिंग कंप्लीटली टू गॉड, दैट इज आत्मनिवेदनम। Any question? This from Navavida Bhakti. सर अर्चनम और बंदनम में डिफरेंस क्या होगा? बंदनम में है जैसे वंदना करना, जैसे गणेश वंदना हमने बोले। अर्चना है जैसे वो आरती पंचपदी लेके जो आरती करते हैं, दैट इज वो अर्चना में होता है। अच्छा। और जब वो गाना गाते हुए वो होता है, दैट इज कॉल्ड अर्चना। यस अनम। सर जो यहाँ पे लिखा है, a mystical relationship with God who may seem as a friend, a child, a mother or a teacher, ये इन्हीं में है, they're the in part of the following 9 ways. यस, जैसे जब वो फ्रेंड होते हैं तब दास्यम होता है। हाँ। और उसमें भी है जैसे कुछ रस भी है, जैसे वात्सल्य रस, उसमें है मधुर रस, जैसे एक जैसे राधा और कृष्ण जैसे वो है मधुर रस। वात्सल्य रस जैसे श्री कृष्ण और उनका माता जसोदा, दैट इज वात्सल्य रस। देन वीर रस, वीर रस मतलब जैसे वो जब जाके युद्ध कर रहे हैं, युद्ध भूमि में जब खड़े हैं अर्जुन और श्री कृष्ण, वो है वीर रस। ठीक है। तो ये अलग अलग उसमें डिवाइडेशन है। ठीक है। तो उसमें तब वो जाके आते हैं कि उसके अंदर में जो जब वो वात्सल्य आते हैं, तब वो मतलब तब जैसे कहीं पे भी वो बोला भी जाता है कि माता यशोदा वो पहले से भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण वो उनका जो बेटा है वो भगवान ही है, लेकिन वो फिर भी उनको छोटे से बड़े किए, उनको डांटा, वो सब कुछ किए, बिकॉज
शी नोज दैट यही मेरा कर्तव्य कर्म है। Then qualities of a bhakta, that is चतुर्विध भजन्ते मम जन सुकृत अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरतवर्षभ। चतुर्विध भजन्ते मम जन सुकृत अर्जुन आर्थ अर्थात ज्ञानी च भरतवर्षभ। 4 प्रकार रूप से सभी लोग मुझे पूछते हैं। एक है आर्त, जिज्ञासु, अर्थात ज्ञानी। अर्थ क्या है? जो डिस्ट्रेस है, जो ऑलवेज दुखी रहते हैं। जिज्ञासु, जो इनक्विजिटिव है, जिनके अंदर में जिज्ञासा है। अर्थार्थी, जो डिजायर ऑफ वेल्थ, जो पैसा के लिए जिनका मन भरे हुए हैं। ज्ञानी, ही हु इज इन सर्च ऑफ द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, जो अल्टीमेट नॉलेज क्या है उनके लिए जो जानना पसंद करते हैं या जानना चाहते हैं। So, sir, the Jigyasu can eventually become the Jnani also. नहीं, जैसे जिज्ञासु, यस, वो ज्ञानी जब वो ज्ञान लाभ करना चाहते, जैसे एक ही व्यक्ति में 4 गुण भी रह सकता है। जैसे अर्जुन जब वो युद्ध भूमि में खड़े हैं तब वो आर्त है, मतलब डिस्ट्रेस्ड है। जिज्ञासु, उनके मन में जिज्ञासा है। when he is asking questions to श्री कृष्ण, जैसे श्री कृष्ण बोला अरे तुम तो ज्ञानी हो के मूर्ख की तरह बात कर रहे हो। इन दैट टाइम ही इज जिज्ञासु। अर्थात ही डिजायर ऑफ, वो युद्ध भूमि में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जो राज्य हो वापस उनको चाहिए, और राज्य वापस चाहना मतलब उनका वो वेल्थ या पैसा ही वो मांग रहे हैं या संपत्ति ही मांग रहे हैं। ज्ञानी, और फिर वो ही बोलते हैं कि आप मुझे विश्व रूप दिखाओ, या अल्टीमेट क्या है, मोक्ष क्या है। तो उनके अंदर में वो भी है कि वो नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट जो है वो दे आर आस्किंग। तो एक ही व्यक्ति के अंदर में 4 गुण भी रह सकता है। कोई व्यक्ति कभी वो आर्त हो सकता है, कभी वो जिज्ञासु हो सकते हैं, मतलब जिज्ञासा लेके भी कोई सिर्फ भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई अर्थार्थी होके भी वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कोई ज्ञानी होके भी। जैसे ज्ञानी का उदाहरण तो बहुत लोग हैं जो पहले भगवान को ज्ञान से जानते हैं, फिर वो भगवान को प्राप्त करते हैं। जो डिस्ट्रेस है, कोई दुख लेके, जैसे हर एक जीवन में ये 4 चीज ही रहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, वो पहले एक उनको जॉब नहीं मिल रहा था, इसके लिए वो, और उनके अंदर में दुख था कि हु एम आई, वो मुझे जानना है। और वो कहाँ से जान पाएंगे, इसके लिए वो इधर उधर भटकते हुए रहते थे। ऐसे ही भटकते हुए वो दक्षिणेश्वर पहुंच गए, या ठाकुर रामकृष्ण से उनका मुलाकात हो गया। फिर वो जिज्ञासु थे कि वो, उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने क्या भगवान को देखा? तो तब उन्होंने बोला हाँ देखा, जैसे हम तुमको देख रहे हैं वैसे उनको भी देखते हैं। देन अर्थात ही उनको जॉब नहीं मिल रहा था, तो एक दिन वो ठाकुर श्री रामकृष्ण के पास गए और बोले कि मेरा घर में तो बहुत प्रॉब्लम है, तो आप कुछ करो। तो बोला कि आप जाके माँ से मांग लो, मतलब माँ काली से मांग लो। वो जाके वो मांगते तो है, लेकिन वो मांगते हैं कि मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो, शक्ति दो, ताकत दो। वो कभी भी ये मांग नहीं पाए हैं कि मुझे एक जॉब दे दो। तो 3 बार जाके 3 बार ही वो फेल होके आए।
लेकिन उनका मन में तो वही था कि वेल्थ का भाव, मतलब संपद उनको चाहिए। लेकिन वो जाके फिर वो खुद ट्रांसफॉर्म हो गए, तब वो जाके ज्ञानी बन के फिर now we know that he is a promoter of all this Advaita Vedanta philosophy in modern days. Any question? ठीक है, so we'll move to next कर्म योग। अच्छा, भक्ति योग सभी को समझ में आ गए या नहीं? अच्छा, एक काम करते हैं, आई विल टेक 5 minutes break. हाँ, so in that time we'll listen एक सॉन्ग, भक्ति गीत ही सुनेंगे। এটা শেষ করে দাও তো স্যার। शायद थोड़ा स्लो मोशन का है, बट यू विल लाव, आई बिलीव।
Are you feeling overwhelmed, stressed because what is happening around you? Maybe the way the world is moving, maybe the way your family is reacting.
ओके, वेलकम बैक। ये एक बोल सकते हैं एक भक्ति योग का एक झलक, मतलब कीर्तनम। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कर्म योगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, दैट इज लैंड ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। वहां पे भी ऐसे कीर्तन भजन ये बहुत जोर तोर से चलता है, ठीक है। एज दे आर, मतलब वो ऐसे घोषित रूप से ही वो भक्ति योगी है, भक्ति मूवमेंट का वो जनक है, मतलब। और वहां पे भक्ति ही भक्ति है। You can see often they are doing japa, they are doing gathering and they are chanting all together. कोई एक जगह पे मतलब सिर्फ 24 आवर्स इंटू 365 डेज वहाँ पे हरिनाम होते हैं, तो वो लोग जाके वहाँ पे बैठ के सुनते हैं, फिर वहाँ से चले आते हैं। So all these things is happening because all these things denotes to bhakti yoga. Then karma yoga. What is karma? Karma means action. Yoga means union. Karma yoga means union through action. कर्म के द्वारा मुक्ति ही कर्म योग है. It is a path chosen primarily by those who are of an outgoing or action-oriented nature. It purifies the heart by teaching the aspirant to act selflessly without thought of personal gain or rewards, by detaching yourself from the fruits of your actions and offering them up to God. You learn to sublimate the ego according to the Bhagavad Gita. Karma Yoga is the selfless devotion of all inner as well as the outer activity as a sacrifice to the Lord of all works, offered to the eternal as a master of all the soul's energies and austerities. कर्म योग वही है, कर्म के द्वारा मुक्ति। जैसे कोई एक व्यक्ति वो अगर योगी बनना चाहते हैं तो उनके लिए फर्स्ट अगर बोलते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त का वृत्तियों का निरोध करो, तो वो क्या करेंगे? अष्टांग योग का अभ्यास करें। लेकिन उनसे इजी बोला जाता है किसी को अगर कर्म करो। जैसे कोई अगर फार्मर है तो वो तो जाके आज बैठ के ध्यान नहीं लगा सकते हैं, वो जाके आज आसन प्राणायाम उसमें ही अपना जीवन अतिवाहित नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको हम बोल सकते हैं कि आप कर्म योगी बनिए। जो भी आप कर्म कर रहे हो वही आपके लिए योग है, उसको सही रूप से आपको कंप्लीट करना है। और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें भगवत भक्ति के साथ काम करना है। दैट इज कर्म योगा, दैट इज कर्म योगा। और वही करना अल्टीमेट है एंड वही करना चाहिए, एंड दैट इज अल्टीमेट। कर्म कैसे होना चाहिए और कर्म का क्लासिफिकेशन क्या है? भगवत गीता के अनुसार 4 प्रकार का वर्ण आश्रम है। वर्ण और आश्रम ये 2 शब्द है। वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एंड आश्रम क्या है? 4 आश्रम है। दैट इज ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करेंगे? वो ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। चन गार्हस्थ मतलब वो फिर शादी करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट सक्सेशन लेके आएंगे।
देन वानप्रस्थ, उसमें जो उनका बेटा हो या बेटी हो, उनका बेटी अगर होते हैं तो उनका विवाह करवा देना है, और बेटा है उनका भी विवाह करवाना है। फिर वानप्रस्थ समय पे वो अपना पूरा फैमिली का वो लगाम वो अपने हाथ में लेंगे। फिर वो जब उनका बेटा फिर पढ़ाई करके वो रेडी हो जाएंगे, तब ये जाके संन्यास लेंगे। ठीक है, संन्यास मतलब जो भी अपना सब कुछ है वो अपना बेटा के ऊपर दे के वो जंगल में चले जाएंगे, या तो घर में रहेंगे कुछ दिन, फिर उसके बाद जब उसको लगेगा कि नहीं, घर में भी अभी और रहना नहीं है, अभी जीवन को त्यागना है, जो मुझे भोगना है वो हम भोग लिए हैं और कुछ आगे नहीं है, तब वो जाके जंगल में एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीते हैं और अपना अ, शरीर को त्यागते हैं। दैट इज संन्यास। तो ये 4 आश्रम थे और वर्ण भी 4 थे। दैट इज ये 4 वर्ण का अलग अलग वर्ण के अनुसार आश्रम होते हैं। तो ये वर्ण और आश्रम को पालन कर ध्यान में रखते हुए जो भी कर्म है वो करना चाहिए। वर्ण एंड आश्रम, इसको ध्यान में रखते हुए कर्म करना, नो अदर थिंग्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ये वर्ण आश्रम लेके सर ये एक बार लिख दीजिए ना, नोट कर लेती हूँ। क्या नोट करना है? आश्रम के बारे में और वो वर्ण के बारे में, क्या अच्छा क्या नाम। अच्छा, वर्णस। अच्छा, आश्रम, that is called ashramas. Ashramas are 4: brahmacharya, garhastha, vanaprastha, sannyas, and varnas are 4. That is brahman, kshatriya, vaishya and shudra. सर आश्रम में जो गृहस्थ, दैट इज गृहस्थ ना, जो गृहस्थ हम बोलते Yes, हैं। yes, yes. गृहस्थ, गृहस्थ। सर वनप्रस्थ जो है वो रिटायरमेंट टाइप चीज हुआ ना? वानप्रस्थ मतलब नहीं नहीं, वो मतलब घर में रहेंगे, लेकिन वो कुछ एक्टिवली कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो मार्गदर्शन करेंगे।
So sir, varnas और आश्रमस में क्या रिलेशन क्या है, दोनों how they are related? जैसे ब्राह्मण होने से भी उनका ब्रह्मचर्य है, तो मतलब उनको एजुकेशन ग्रहण करना है। गारहस्थ में उसका क्या काम है? पूजा पाठ विद्या दान करना। वानप्रस्थ में वो पूजा पाठ भी करेंगे और किसी को उनका जो नेक्स्ट सक्सेशन है उनको भी सिखाएंगे भी। ठीक है। एंड देन तो वर्ण कर्मों के अनुसार जो है आश्रम का पालन करें। सर क्षत्रिय भी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास भी हो सकता यस। है। अच्छा, वो अपने वर्ण के हिसाब से अपने आश्रम का पालन करेंगे, वही ना? एनी क्वेश्चन? सर कर्म योगा में ये जो कर्म योगा में ये क्यों बोल रहे हैं, मैंने ये ब्राह्मण का कर्म है, एक एकदम क्षत्रिय का कर्म है, ये एकदम। इसीलिए। ओके। गर्गी, इज इट सर ओके? लिख लिया, ये समझ लिया? ओके। यहाँ पे जो भगवत गीता में जो कर्म योग का जो बारे में बताया गया है, दैट इज कर्मण्यवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माति संगहस्त कर्माणि। मतलब कर्म में हमारा अधिकार है, कर्म फल में कदाच नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, कभी भी खुद को कर्म फल का हेतु ना मानना। ते संगहस्त कर्माणि, और कभी भी कर्म करते हुए चोगना भी नहीं है। मतलब कर्म नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और कर्म में ही हमारा अधिकार है। मतलब वी आर एंटाइटल्ड टू वर्क ऑनली। सिर्फ हम लोग अपना जो कर्म है वो कर सकते हैं, लेकिन वो कर्म छोड़ के और कुछ हमारे हाथ में नहीं है, और कर्म नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता है। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself to be cause or hetu of the result of your activities, and never be attached to not doing your duty. और कोई भी काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है? You have to perform your duty. That means you should never be inactive or passive. Inaction. Consider yourself as a tool in the hand of supreme consciousness, and dedicate yourself in the
सेल्फलेस सर्विस एज फार एज यू कैन, और वो सेल्फलेस सर्विस के अनुसार ही काम करना है। जो भी काम कर रहे हैं वो भगवत भक्ति के साथ करना है। जो भी काम कर रहे हैं वो यही सोचना है कि ये ईश्वर की इच्छा से हम कर रहे हैं, और जो भी सही कर्म है वही करना चाहिए, नहीं तो कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो कर्म नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट entitled to do the all the work. Okay. लेकिन जो कर्म कैसे करेंगे उसमें बताया गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योगो उच्यते। योग में स्थित होकर काम करना है, और समत्तम योगो उच्यते संगम तत्व धनंजय, और उसमें कभी भी अटैचमेंट नहीं होना। धनंजय मतलब ये अर्जुन, उसमें कभी अटैच नहीं होना है। सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योगो उच्यते, सिद्धि और असिद्धि दोनों में ही समान अवस्था में रहना है, और उसी को योग का सर्वोच्चम स्थिति बताया जाता है। वही योग का सर्वोच्चम स्थिति बताया जाता है। Be steadfast in yoga, O Arjuna, perform your duty and abandon all attachment to success or failure. Such evenness of mind is called yoga. Yogi is not the one who becomes egoistic, though attains miraculous power and would not be apprehensive about their non-attachment. Without having any complaints, he would render his service with utmost devotion to the lotus feet of Supreme Lord. और वो सब कुछ जो भगवान के ऊपर समर्पित करके ही अपना कर्म करेंगे, and that is ultimate. Okay, any question? Yes, Anam. Sir, जो direct, what would be the direct translation of सिद्ध्य सिद्ध्यो? सिद्धि मतलब जो अच्छा कर्म है, मतलब सक्सेस एंड फेलियर। असिद्धि मतलब फेलियर। Okay, so सिद्धि असिद्धि. Okay. Yes. सिद्धा सिद्धो, इसीलिए सिद्धि और असिद्धि दोनों एक साथ, सिद्धा सिद्धो। Thank you. मतलब संस्कृत में ऐसे युक्त अक्षर और युक्त शब्द का बहुत प्रयोग है। जैसे सुख और असुख, मतलब सुख का अभाव ही असुख है। ठीक है, असुख मतलब कोई बीमार है तो असुख नहीं है, सुख का अभाव ही असुख है, ये ऐसे माना जाता है। जैसे हिंसा और अहिंसा, हिंसा क्या है? जो दैट इज वायलेंस। अहिंसा मतलब हिंसा ना होना ही अहिंसा है। पुण्य पुण्य भी है ना सर? एकदम पुण्य पुण्य। यस। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाता है तो इसमें अच्छा, मुक्त संगहनवादी धित्र साहस समन्वित सिद्धा सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। मतलब the worker who is free from all material attachment and false ego, who is enthusiastic and resolute, and who is indifferent to success or failure,
इज ए साधका और परफॉर्मर ऑफ डीड्स इन द राइटियस पाथ। मतलब जो मेटेरियल अटैचमेंट से वो दूर होते हैं, और ईगो मतलब अच्छा ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसमें मेरा लाभ है, इसमें मेरा लॉस है, ये जो नहीं सोचते हैं वही सात्विक करता है। दे आर कॉल्ड सात्विक करता। देन और वो ही योग के रास्ता पे सात्विक करता उनको माना जाता है, ये बोला जा सकता है। देन 4 मेजर लॉज ऑफ कर्म। 4 मेजर जो लॉ है कर्म का वो है वर्क विथ ए सेंस ऑफ ड्यूटी। मतलब ये मुझे करना है इसीलिए हम कर रहे हैं, ये मेरा ड्यूटी है और इसको हम नकार नहीं सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट, उनका जो ड्यूटी है पढ़ाई करना, वो उनको नकार नहीं सकते हैं। स्कूल टीचर हैं तो उनका काम क्या है, पढ़ाना, वो उनसे हाथ नहीं उठा सकते हैं। एक पेरेंट्स, उनका काम है कि उनका बच्चा वो पढ़ने के लिए जाए, वो खुद उनका मतलब पालन पोषण करे, ये उनका ड्यूटी है, वो उनको पालन करना चाहिए। वर्क विदाउट गेटिंग इंटेंसली अटैच्ड और फोकस अटेंशन टू द वर्क। कोई भी काम करना है इंटेंसली अटैच होके और फोकस अटेंशन लेके काम करना है टू द वर्क। जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस अटेंशन उनका होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। मतलब वो कभी भी वो सक्सेस नहीं हो सकते हैं और वो कर्म योगी कभी भी नहीं हो सकते हैं। Never allows the anxiety about result interfere with your mind during the currency of the job। और कभी भी एंजाइटी ये नहीं होना चाहिए, अच्छा इसमें मैं पास होऊंगा या फेल हो जाऊं। पास या फेल इसका चिंता नहीं करना है। इसीलिए जब भी जैसे लेवल 1 2 3 4 जो भी करते हैं, हम सभी को बोलते हैं पास या फेल का चिंता नहीं करना है। पास फेल अभी किए हैं तो पास भी कर जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हाट वी नीड दैट इज कर्तव्य कर्म। मतलब वी नीड टू स्टडी। तो स्टडी अगर सही से करते हैं तो हो सकता है एग्जामिनेशन तो कोई ह्यूमन या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है उनके द्वारा होता है ना, उसमें गलत हो ही सकता है। बट इफ यू हैव नॉलेज वो कभी गलत नहीं हो सकते, उससे कोई वो कोई छीन नहीं सकता। दैट इज 100%। ठीक है? इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं, लेकिन उनको भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है तो वो बोलेगा वो नाल है या भायक है। ठीक है, वो बोलेंगे नाल क्वेश्चन है, मतलब ये उनके पास आंसर नहीं। बट इफ यू आस्क दैट क्वेश्चन टू ए टीचर, he or she will answer you, definitely answer you। लेकिन हमें भी जैसे हो सकता है कि गूगल में देखना कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक करके आप सर्च करके देखो, तो स्पेलिंग वो करेक्ट करके वो आंसर सर्च रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन वो जो स्पेलिंग जो गलत है वो गलत क्यों है, वो सही क्यों है, वो नहीं है। उसका जो इंस्टीड ऑफ दिस वो कोई अलग सर्च रिजल्ट दिखाएगा कि ये कीवर्ड अच्छा नहीं है, ये कीवर्ड इज नॉट वैलिड कीवर्ड, ये भी लिखेंगे। दैट इज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होता है बोल के होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर सही में अच्छा ठीक है इसमें मुझे लाभ मिलेगा, लॉस होगा, डोंट वरी, जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी, इट विल वर्क परफेक्टली। तो स्थित प्रज्ञा का जो आइडिया है वो पूरी तरह से इस पे जाता है एकदम स्थित है ना? नहीं होने से ना वो भक्ति योगी हो पाएंगे, कर्म योगी हो पाएंगे, ना वो ज्ञान योगी हो पाएंगे। स्थित प्रज्ञ तो ऑलवेज होना ही है। मतलब देखो भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज और ज्ञान। तो उसमें जो बताया हुआ है उस हर एक जगह पे उसी को देखना, सभी जगह पे वो मिल रहे हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट नॉलेज है। तो छोड़ और कुछ नॉलेज होता ही नहीं है। तो स्थित ये हम हाँ पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा स्थित प्रज्ञा के बारे में, बिकॉज आई रिमेम्बर सर लेवल 1 में
देयर वाज अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी, बट मेरे पास इसका आंसर नहीं था। उसके बाद मैंने रिसर्च किया था बहुत। अच्छा, तो स्थिति सर, प्रज्ञा है, शायद तुम लोगों के सिलेबस में है। है ना सर? हम्म, स्थिति प्रज्ञा है। सर, यस। सर जो वर्क विदाउट गेटिंग इंटेंसली अटैच्ड टू द वर्क, तो ये विदाउट गेटिंग इंटेंसली अटैच्ड हम लोग कैसे काम करेंगे? बी। इंटेंसली अटैच होके काम कैसे करेंगे? विदाउट गेटिंग इंटेंसली अटैच्ड, विदाउट गेटिंग लिखना है। हाँ, विदाउट गेटिंग, जैसे कोई भी काम करेंगे वो मेरा कर्तव्य कर्म है इसीलिए कर रहे हैं, वही सोच के अगर काम करते हैं। जैसे आ, सोचो, यू आर ए मिनिस्टर, ठीक है, आप एक सिग्नेचर करते हो, तो सोचो कि कोई एक मतलब एक का जॉब परमानेंट हो सकता है, ठीक है। और एक व्यक्ति अगर एक बार जॉब मिल जाता है, उनका सैलरी अगर 50,000 है, तो साल में वो कितना कमाएगा? 6 लाख। 6 लाख। अगर आ, वो सोचो कि वो 30 ईयर्स ही काम करेगा, तो 30 ईयर्स में वो कितना कमाएगा? 1.8। 6 into 30। 1.8 CR। हाँ, 1.8 CR। तो वही है कि आ, अगर आप उनको बोलते हो कि आप मुझे 10 लाख रुपया दे दो, तो आपको ये जॉब मिल जाएगा, वो सही है क्या या गलत है? गलत है सर। लेकिन देखो, उनको तो 180, मतलब 1.8 करोड़ उनको मिल रहा है उनका पूरा लाइफ में। उनसे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि हर साल में 5% इंक्रीमेंट है गवर्नमेंट का, फिर डीए है, ये है, हर 10 साल में उनका सैलरी डबल हो जाएगा। तो आज 50,000 में अगर वो उनके एंट्री हो रहा है, तो 10 साल बाद उनका 1 लाख रुपया होगा, फिर 10 साल बाद उनका 2 लाख रुपया उनका सैलरी होगा। ये तो गवर्नमेंट का ऑटोमेटिक पॉलिसी है। तो सोचो कि उनका वो फिर 3 करोड़ या 4 करोड़ भी जा सकते हैं टोटल वेल्थ उनके पास से। आई एम आस्किंग ओनली 10 lakhs। ये तो ज्यादा कुछ नहीं है ज्यादा कुछ? द इंटेंशन इज नॉट गुड ना। क्यों नहीं गुड नहीं है? यू आर आस्किंग फॉर, माने उनको मांग रहे हो आप, आस्किंग फॉर ब्राइब। हाँ, तो गलत कैसे हुआ? Maybe someone with better expertise who can't afford that 10 lakhs initially may deserve it, but somebody who has the money will give it and say, ठीक है, अब मेरा लग गया। हाँ, यही है कि उनका वो कर्म नहीं है इंटेंसली अटैच। मतलब वो अगर अगर इफ यू आर ए मिनिस्टर एंड यू आर आस्किंग द मनी, तो आप उन जॉब से आप खुद को अटैच कर रहे हो। उस जो कर्म फल है उनसे आप खुद को अटैच कर रहे हो। कर्म फल क्या है? जो जॉब मिल जाना। तो जॉब के साथ आप खुद को अटैच कर रहे हो, बोल के आप उससे पैसा मांग रहे हो। और अगर आप खुद का वो सोचते हो ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मतलब ओके, मे बी आई एम इन दिस चेयर because of doing all those things. Maybe I am getting only 20,000 per month, but I could able to give the salary of 2 lakhs also, क्योंकि वो उनका वो एक्सपर्टीज है। तो इस रूप से अगर काम करते हैं, देन यू आर ए ट्रू कर्मयोगी। कोई पुलिस में काम करते हैं, जब उनका रिटायरमेंट होता है, 2-3 बंगलो रहते हैं, करोड़ों रुपया उनके पास अकाउंट में रहते हैं। और कोई पुलिस का जॉब करता है और उनका घर नहीं चलते हैं। कैसे? बिकॉज जिसका घर नहीं चलते हैं, हम सोच ले कि उनका उनका कोई वो इंटॉक्सिकेंट्स नहीं है, वो कुछ नहीं है, सिंपल एक साधारण व्यक्ति है, दोनों ही साधारण व्यक्ति है, जो बहुत कुछ वेल्थ एक्युमुलेट करते हैं। मीन्स वो जो कर्म फल है उनसे वो खुद को अटैच कर लिए होंगे, इसीलिए कर्म फल उनके साथ भी उनका घर में भी आ चुके हैं। और जो खुद को अटैच नहीं कर पाए,
वो शायद उनके घर में तो आया ही नहीं, जो आया है वो खुद दान में भी लोगों को दे दिया। ऐसे बहुत सारा मिनिस्टर है या बहुत सारा नेता है जो 30 इयर्स वो राजनीति में रहने के बाद भी, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके पास छोटा सा एक कमरा है, छोटा सा एक कार भी नहीं है। एक साधारण व्यक्ति की तरह वो अपना जीवन को बिताते हैं, क्योंकि जो जब वो मुख्यमंत्री थे उनका तो सरकार की तरफ से उनका वो सब कुछ व्यवस्था था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। सो दैट्स द थिंग कि वो जिसके पास अभी कुछ है नहीं, वो सारा कुछ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो संप्रदान किए होंगे। और जिसके पास अभी वो मुख्यमंत्री से रिजाइन देने के बाद उनको 100 करोड़ 200 करोड़ का संपत्ति बन गया, तो मतलब वो फल से वो अटैच्ड है, इसलिए उनका हुआ है। हर किसी के बारे में हम बोल सकते हैं ऐसे। वैसे कोई साधारण व्यक्ति से असाधारण, सभी के साथ यही उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो इंटेंसली अटैच नहीं होकर काम करना, मतलब कोई भी काम ऐसे आए तो उनसे अटैच नहीं होना है, ठीक है, दैट इज ओके। बट वो मेरा टाइप का भी नहीं और उनसे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, यही सोचना है। Yes. Thank you, sir. Any question about कर्म योगा? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो एक पीपीटी बना लेना और इस पे जो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जो हम लोग पढ़ाई किए हैं इसके ऊपर भी बस स्टडी करना है। कुछ अगर क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली विल डिस्कस एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। एंड नेक्स्ट वीक वो थ्योरी सेशन नहीं होगा, सैटरडे संडे। एंड प्रैक्टिकल लास्ट वीक सभी ने लिए थे मोटा मोटी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लेके? अनम का क्लास इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? जल्दी खत्म हो गया सब। तेज बोलती भी हूँ बहुत, आई डोंट नो। सब कुछ तो कवर हो गया, ब्रीदिंग भी कर लिया, प्रेयर भी कर लिया। अच्छा नहीं, वो उसको लेंदी करना है। सूक्ष्म व्यायाम या लूजनिंग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो 5 मिनट तक करवाना है। फिर स्टैंडिंग पोजीशन, सूर्य नमस्कार किए, देन स्टैंडिंग पोजीशन कुछ आसन किए, 4-5 करो, धीरे धीरे करो, विद ब्रीदिंग करो, विद एक्सप्लेनेशन करो, सो दैट पीपल विल गेट इंडल्ज विथ यू। मे भी वहाँ पे ऑडियंस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, तीनों बैच में वो डिवाइड हो गया। मॉर्निंग 7 से 8, हम दोपहर 11:30 से भी क्लास लेते हैं, उसमें भी कोई लोग ज्वाइन करके क्लास करते हैं। फिर वो इवनिंग में 6:30 का क्लास, फिर तो वो इसीलिए कम कम लोग होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक भी होते हैं तो ये हम लोग का ये टीचिंग है, लेशंस है, सो वी नीड टू टीच देम। और 1 घंटा का ही 50 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर में ही कंप्लीट करना है, 50 मिनट से कम नहीं और 1 घंटा से ज्यादा नहीं, ठीक है। इस रूप से खुद को वो लेसन प्लान रेडी करना है। हाँ, ऐसा हमने किसी को देखा, वो जब फर्स्ट डे क्लास दिए तो ऐसे क्लास लेते लेते वो हो गया कि 2 घंटे से ज्यादा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो टाइम पे कंप्लीट करना है, बिकॉज कॉर्पोरेट का डिमांड वही है या समय का डिमांड वही है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना है और बहुत कम भी नहीं बोलना। जितना जरूरी है उतना ही बोलो, एक दिन में ही तो खत्म नहीं होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर आप बोलो, नेक्स्ट डे फिर बोलो। सर क्लास का वीडियो थोड़ा भेज देते, मैं देखती मैं कैसे की। अच्छा अच्छा, वो अभी इन प्रोसेस है। कुछ वीडियोस हम कल भी या परसों भी भेजे हैं, तो आज कल में शायद वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा क्योंकि सर मुझे लगा कि मैं 1 आवर सेशन ली, लेकिन टाइम देखी तो 50 मिनट्स हुए थे, जस्ट 50 मिनट्स में खत्म हो गया, तो मुझे पता नहीं चला, इसीलिए बोल रही। 1-2 मिनट का वो अलग इधर उधर है, लेकिन कोशिश करना है 50 मिनट्स टू 1 आवर। जब व्हेन यू विल बी टेकिंग सेशन इन स्कूल्स, तो वो सेशन फिर कॉम्पैक्ट करके 40 मिनट्स में लेके आना है, 40 मिनट्स। ठीक है। तो ये अभी 50 मिनट्स का बना के रखते हैं, जो क्लाइंट्स की तरफ हम लोग को देना है या योगा एट स्टूडियो में करना है, तो 50 मिनट्स टू 1 आवर का ही सेशन रहता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, एक डाउट था, पूछूं? हाँ, सर मेरा ना वो जॉइंट मूवमेंट जो सूक्ष्म व्यायाम है ना सर, वो
हमेशा जरूरी है कि वी हैव टू फॉलो दिस आयुष मिनिस्ट्री वाला सूक्ष्म व्यायाम में, हम अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं? एकदम क्योंकि कर वो सकते याद नहीं हैं, रहता सर। वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हेड मूवमेंट, शोल्डर हाँ, मूवमेंट, ट्रांग मूवमेंट, नी मूवमेंट एंड देन एंकल मूवमेंट, वैसे हिसाब से 2-2 3-3 करके अभ्यास करना है, ठीक है। क्योंकि वो याद नहीं रहता है। इवनिंग का सेशन इसलिए इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू विल डिजाइन, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए, वो सिंक्रोनाइज्ड वे में होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीक में भी लास्ट वीक का जो था उसी रूप से ही रखते हैं। ऋतु फ्राइडे, Yes, sir. अरुंधति थर्सडे, वेडनेसडे अनम एंड मंडे त्रिशा, ठीक है। अभी वही रखते हैं। ट्यूसडे का और दूसरा है गीताली भी बोल लेते हैं क्लास, ठीक है। सो विल कंक्लूड द सेशन टुडे हियर ओनली विद प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। Where are the sounds? When it's little warm, gently attach your pollen. And gently open your eyes. Thank you. Thank you, everyone. Right, so